Hello, good morning, everybody. Good morning, ma'am. Okay, now we start the class. Yesterday we have discussed about GB syndrome, that is Guillain-Barré syndrome. Everything we have discussed. What is the definition? What are the causes? What is the pathophysiology? Clinical signs and symptoms and management. We have already discussed of GB syndrome. So today we will be discussing about multiple sclerosis. Notes I will provide you today. Okay, so in introduction, the autoimmune disorder of nervous system can attack the CNS, which includes brain and spinal cord, or PNS, that is peripheral nervous system, consisting of the nerves that connects the central nervous system. तो जैसे what are autoimmune disorders? Autoimmune disorders are the disorders of nervous system. मतलब when our body is attacking our own body, that is known as autoimmune disorder. So autoimmune system disorders include multiple sclerosis, myasthenia gravis, then Guillain-Barré syndrome or GB syndrome. So we have already discussed about GB syndrome. Today we will be discussing about the multiple sclerosis. So what is MS or multiple sclerosis? It is a chronic demyelinated disease condition that affects the myelin sheath of the neuron in the nervous system. तो when I was teaching you GB syndrome, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, पूरे स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स होते हैं, या हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, उसमें जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर connected or and they are protected by myelin. Myelin sheath is there, that is the protective layer of neurons. So multiple sclerosis is a chronic demyelinating disease condition that affects the myelin sheath of the neurons in the central nervous system. That means the myelin sheath is getting when the myelin sheath is getting destructed by any cause, inflammatory process हो सकता है, autoimmune disorders हो सकते हैं, या फिर idiopathic भी हो सकता है. कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि किस वजह से myelin जो है वो अपना natural process को lose करती जा रही है या उसके अंदर distraction हो रहा है. तो if there is any distraction in the myelin sheath of the neurons of the nervous system, it will lead to chronic demyelinating disease condition which is known as multiple sclerosis. So डेफिनेशन क्लियर है सबको? मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? When the myelin sheath is getting affected or when the myelin sheath is getting destructed in the neurons, that condition is known as multiple sclerosis. Then आते हैं आपके incidences पर. Incidences में onset occurs between 20 to 40 years of age, यानी कि this is a very early period, early age group में ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स अफेक्ट करते हैं. तो ऑनसेट जल्दी अकर हो जाता है, विद इन 20 इयर्स टू 40 इयर्स एज ग्रुप के पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस. देन वुमेन आर मोर अफेक्टेड देन मेन. अब जीबी सिंड्रोम में क्या था? जीबी सिंड्रोम में मेंस आर मोर अफेक्टेड देन विमेन, एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस में विमेन आर मोर अफेक्टेड देन मेन. देन वाइट्स आर more affected than hippies and blacks or Asians. जो Asian means Indians and जो नॉर्मल अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं उनमें ज्यादा डिजीज कंडीशंस होती हैं. एंड दिस multiple sclerosis is a most common disease condition of the whites or Americans. Then it is more prevalent in colder climates like North America and Europe, जहाँ पर colder climates ज़्यादा होते हैं. पूरा साल भर वहाँ का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज रहता है, या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, या टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई. तो दिस इज मोर प्रिवेलेंट इन कोल्डर क्लाइमेट्स. Then comes to the etiology or risk factors. Etiology means the exact causes, and risk factors means the 50-50% causes. The exact cause is unknown or the disease condition is idiopathic. तो हमारा जीबी सिंड्रोम भी इडियोपैथिक था, उसके अंदर भी पता नहीं चलता है कि किस कंडीशन की वजह से पेशेंट का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कैन बी हेरिडिटरी ऑल्सो. और बॉडी के अंदर इस ऐसे कौन से सिम्टम्स आ गए हैं कि बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी तरीके का प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से बॉडी खुद के ही सेल्स को डैमेज कर रही है, तो ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ द डिजीज कंडीशन आर अननोन एंड इट इज स्टिल इन द रिसर्च प्रोसेस के किस वजह से किसी भी पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है या जीबी सिंड्रोम हो रहा है. दिस इज द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये तो कंफर्म है, बट
ऑटो इम्यूनिटी किस वजह से हो रही है, that is under research conditions. The most theories suggest that MS is an immunogenetic viral disease. Immunogenetic viral disease. तो अभी रिसर्च में है, मतलब द कंडीशन इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, आपका जीबी सिंड्रोम हो गया, these conditions are in research process. तो most of the theories जो researchers बनाते हैं वो मोस्टली ये डिफाइन करते हैं कि these conditions are viral disease condition. बट कौन से वायरसेस इनको ज्यादा अफेक्ट करें, ग्राम नेगेटिव हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं, या आरएनए वायरसेस है, ड्यूप्लीकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन सी वायरल डिजीजेस हैं, वायरल वायरसेस हैं जिनकी वजह से पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम माइस्थेनिया ग्रेविस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस और जीबी सिंड्रोम. So causes are unknown, but risk factors are age. Definitely, some patients who are under not some means patients who are under 20 to 40 years of age can develop multiple sclerosis. Gender में आपका females are more affected than male. Then family history, that is genetically susceptible. Patient can be genetically susceptible, और किसी की फैमिली में किसी को पहले से ही अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या जीबी सिंड्रोम का कोई भी किसी भी तरीके का रिजर्वायर भी है तो another generation can be affected. And infections like Epstein-Barr syndrome or viral disease conditions या viral infections को अभी risk factors को भी include कर सकते हैं, because जो आपकी etiology है वो idiopathic है. तो etiology is idiopathic or not known yet, but risk factors can be age, gender, family history, and certain infections. Then climate condition, some autoimmune diseases like higher risk with thyroid disease condition and diabetes mellitus. These are the risk factors, not the exact causes. Type 1 diabetes mellitus, then smoking can cause, stress can cause, then fatigue can cause multiple sclerosis, physical injuries. Exactly, physical injuries अगर किसी को है, nervous system breakdown हुआ है या nervous system में damage हुआ है, तो it can leads to your demyelination of the myelin sheath. And pregnancy, sometimes stress in the pregnancy or stressful labor in the pregnancy or excessive puerperium can also lead to demyelination. Fine. So these are the risk factors. क्या क्या हैं? Age, gender, family history, certain infections like viral infections, then climate, more of the cold countries, then autoimmune disorders like thyroid diseases, yeah, type 1 diabetes mellitus, then smoking, stress, fatigue, physical injuries, pregnancy में भी stressful labor है या stressful pregnancy है या excessive puerperium हो रहा है, तो that is the risk factor of myasthenia multiple sclerosis. देन पैथोफिजियोलॉजी. अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं उसमें क्या चीजें डिनोट की गई हैं कि किस तरीके से ये डिजीज कंडीशन प्रोग्रेस आउट करती है. सो ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स और रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या कॉजेज हैं आपके, एज हो गया या जेंडर हो गया या जेनेटिक हिस्ट्री हो गया या कोई भी एक्सीडेंटल इंजरीज हो गया, ट्रॉमा हो गया, कोई भी आपका इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है या रिस्क फैक्टर हो सकता है, कोई भी कॉज है जो मैंने अभी लिस्ट डाउन किए हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी कॉज, एग्जांपल के लिए एक्सीडेंटल इंजरीज, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मैक्रोफेजेस. तो जब नॉर्मली हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं या जब हम इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारे इम्यूनोलॉजी में हम दो चीजें देखते हैं, टी सेल्स होती हैं, हमारी बीटा सेल्स होती हैं, ठीक है. तो टी सेल्स एंड बी सेल्स हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है. जब टी सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, थाइमस में, वो मैच्योर होती हैं और डिफरेंशिएट होती हैं बिटवीन टी साइटोकाइनेंस, टी हेल्पर सेल्स एंड आपकी टी नेचुरल किलर्स. तो ये 3 टाइप्स के हमारे टी सेल्स होती हैं. फिर उसके बाद में आती हैं आपकी बीटा सेल्स और बी सेल्स जो हमारे बॉडी को सेकेंडरी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. तो व्हेन देयर इज एनी इटियोलॉजिकल कॉजेज लाइक वायरल इन्फेक्शन आ गया या फिर ट्रॉमा हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन का जो टी सेल स्टिमुलेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा या ब्रेन के अंदर टी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि टी सेल्स क्या है, हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब सबसे पहले जैसे ही कोई इन्फेक्शन आएगा तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम टी सेल्स का होता है. उसके बाद में उस एंटीजन को किल करने का या उस एंटीजन को डिक्रीज डाउन करने का काम होता है हमारा बीटा सेल्स का. जस्ट फॉर एन एग्जांपल,
जो बिकॉज टी सेल्स एंड बी सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हमारी एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो पूरे इंडिया को कवर करके रखती है, और पूरे इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है, वो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारी वही अपना उसी का काम होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। तो अब सपोज आपकी बॉडी के अंदर, आपके इंडिया के अंदर कोई बाहर से आने की कोशिश कर रहा है, मतलब दे डोंट हैव परमिशन टू एंटर इनटू इंडिया बट दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर भी इन्फेक्शन आने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट परमिटेड। तो वो किसी ना किसी तरीके से टी सेल्स को डाइवर्ट कर देंगे, या जैसे जो बाहर से लोग आने की कोशिश कर रहे हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को डाइवर्ट कर देंगे और एक पैसेज बना के वो अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ टी सेल्स जो है वो उनका काम फेल हो गया, उनका काम फेल हो गया। तो अभी कौन सी चीजें हमारे काम में आएंगी? बीटा सेल्स। यानी कि अगर सपोज जो टेररिस्ट है वो इंडिया के अंदर उन्होंने एंटर कर लिया, तो अभी हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वापस इंडिया में नहीं बुला सकते, अंदर नहीं बुला सकते, क्योंकि अंदर ऑलरेडी बहुत सारी फोर्सेज हैं। आपकी स्टेट पुलिस हो गई, आपकी सीआरपीएफ होती है, फिर आपका आईएस आईटीबीपी होता है, फिर आपकी सीआईएसएफ है, ये सारी की सारी फोर्सेस हैं। तो अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बाय चांस किसी रीजन की वजह से फेल हो गई, तो उसको हम वहां से नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर वहां से हटा दिया तो हो सकता है और भी लोग अंदर आ जाए। तो इसीलिए बॉडी के अंदर आने के बाद अभी बाकी और चीजें काम कर रही हैं, यानी आपकी सीआरपीएफ काम करेगी, आपकी स्टेट पुलिस काम करेगी, या आपके आईटीबीपी और सीआईएसएफ काम करेगी। तो यही हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। हमारी जो बॉडी है उसका बॉर्डर है स्किन, फाइन। तो बॉर्डर के ऊपर हमारी टी सेल्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और एंटीजेंस को बॉडी में परमिट नहीं करती हैं फॉर एंटरिंग। बट इफ द बैक्टीरिया और द वायरस इज सो मच, और दे आर सो पावरफुल कि वो टी सेल्स को डाइवर्ट करके बॉडी के अंदर एंट्री कर लिया है। अब जब बॉडी के अंदर एंट्री हो गई है तो हमारी बीटा सेल्स जो हैं वो उनसे डिफेंस का काम करेंगी, वो उनसे फाइट करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। तो ये हमारा प्रोसेस होता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, या हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। ये हमारा जो बॉडी एंटीजेंस के अगेंस्ट काम कर रही है, तो वो है हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड इम्यून आपका इम्यून रिस्पॉन्स। तो अभी पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है और किस वजह से हमारी टी सेल्स चाहिए, हमारी बी सेल्स चाहिए। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, वायरल एंट्री इन द बॉडी, it stimulated or it activated the T cells and macrophages or B cells to enter to the brain from peripheral circulation। तो पेरिफेरल सर्कुलेशन क्या है? हमारा जो पूरी बॉडी के अंदर हमारा सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के साथ में प्लाज्मा भी है, ब्लड में प्लाज्मा भी है, पूरा प्लाज्मा के अंदर हमारी एंटीबॉडीज रहती हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स and which now enters the brain from peripheral circulation। तो वहां से पूरा इकट्ठा होगा और हमारे ब्रेन के अंदर आ जाएगा। वहां भी थोड़ा रह जाएगा क्योंकि पूरी बॉडी को भी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मैक्रोफेजेस हैं एंड टी सेल्स हैं वो ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेंस एंड रिएक्टिव O2 स्पीसीज। मतलब जैसे मैंने बताया कि टी सेल्स का काम खत्म हो गया, अब बीटा सेल्स काम करेंगी, बी सेल्स काम करेंगी, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा और इम्यून रिस्पॉन्स होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। तो दिस इज नोन एज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, दिस इज नोन एज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एंड साइटोकाइनेंस। तो साइटोकाइनेंस क्या है? हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या काम करते हैं? फ्रॉम it transfers the message from one area to another area. Now there is inflammation which leads to inflammation. So there is a etiological factor known as called वायरल डिजीज कंडीशन और वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की वजह से एक्टिवेट हो रहे हैं हमारे टी सेल्स एंड बी सेल्स। अब जब टी सेल एंड बी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेंस व्हिच increases the inflammation in the cells, fine, which leads to or which increases the higher activation of T cells and B cells, which leads to demyelination and destruction of the dendrocytes, destruction of the dendrocytes। तो अभी क्या है कि ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन हमारे T cells and B cells सेक्रीट हुए।
एक्टिवेट हुए। अब जब वो सेक्रेट एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेट होने के बाद में बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर और भी ज्यादा टी सेल्स एंड बीटा सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। टी सेल्स और बीटा सेल्स का एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और उस प्रोसेस को हमारी बॉडी में बियर करने की कैपेसिटी नहीं है। जब उस प्रोसेस को बॉडी में बियर करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो दैट कंडीशन विल लीड्स टू डीमाइलिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो हमारे नर्वस सिस्टम को, यानी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम की सेल्स हैं उनमें डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून सिस्टम, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन। समझ आ गया कि क्या हो रहा है? ओके, हम दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका कॉलेज का फेस्ट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपके कॉलेज में फेस्ट है, ठीक है। अब उस फेस्ट के अंदर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो चारों साल के स्टूडेंट्स आपके एंटर होने हैं। बट आपने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि जीएनएम के स्टूडेंट्स या फिर आउटसाइड कैंपस के स्टूडेंट हमारे एंटर नहीं करेंगे। तो ये एक जनरल क्राइटेरिया होता है किसी भी फेस्ट का। तो अब उस फेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट केटरिंग देखेगा, कौन सा डिपार्टमेंट आपका डेकोरेशन देखेगा, कौन सा डिपार्टमेंट आपका जो टिकट्स हैं या पासेस हैं उनका मेंटेनेंस करेगा, कौन से डिपार्टमेंट आपका फाइनेंशियल हेल्प करेगा या फाइनेंशियल जो मेंटेनेंस है कंप्लीट वो कौन करेगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दोगे तो वो आपकी क्लास के बच्चे हो जाएंगे कि फाइव का ग्रुप है वो पूरा का पूरा डेकोरेशन देखेगा, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो पूरा का पूरा आपका एंट्री पासेस देखेगा। तो सपोज वो दिन आ गया है जिस दिन आपका फेस्ट होना है, तो जिसका एंट्री का काम होगा, एंट्री पासेस का काम होगा, वो ग्रुप क्या करेगा गेट के ऊपर, उसका उसका काम हो जाएगा गेट के ऊपर कि कोई भी आउटसाइड का बंदा या जिसके पास पास नहीं है फेस्ट के लिए वो कॉलेज के अंदर एंटर ना करे। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी भीड़ हो गई है बाहर, गेट के बाहर, क्योंकि काफी स्टूडेंट भीड़ हो गई है। तो क्या होगा कि 2-4 लोग जो हैं वो विदाउट पास कॉलेज के अंदर एंटर कर गए और जो गेट के ऊपर कमेटी है उसको पता नहीं चला। लेकिन एक बंदे ने देख लिया, जो मेंबर्स हैं कमेटी मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक ने देख लिया कि 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो विदाउट पास एंटर कर गए हैं। तो यहाँ आपका काम खत्म हो गया। जो एंट्री वाले लोग हैं उनका काम यहाँ खत्म हो गया। उन्होंने क्या बोला, जो मेन जहां पर आपका सीटिंग अरेंजमेंट है या आपका गैदरिंग अरेंजमेंट है वहां जो टीम काम कर रही है उस टीम को मैसेज सप्लाई करना कि अभी 3 स्टूडेंट जिनके नाम ये हैं उन्होंने विदाउट गेट पास एंट्री की है। तो यहाँ गेट पे जो सिक्योरिटी पर्सन हैं उनका काम खत्म हुआ। अभी काम किसका शुरू हुआ, सेकंड लोगों का, यानी कि सेकंड टीम का। वो उनको बोलेंगे कि आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपके पास में पास नहीं है, इसीलिए यू हैव टू वेट फॉर पास और आपको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी ये काम हो गया हमारा सेकंड टीम का। तो सेम ऐसे ही बॉडी के अंदर टी सेल्स का काम किसने किया, यानी कि बॉडी की सिक्योरिटी का काम किसने किया, जो गेट पर सिक्योरिटी है यानी कि हमारे टी सेल्स। उसके बाद वो फेल हो गए अपना काम पूरा करने में, तो उन्होंने बी सेल्स को ऑर्डर किया कि ये जो एंटीजन आए हैं 3 इनको बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये हो गया हमारा बीटा सेल्स का काम। अभी उन 3 लोगों ने बीटा सेल्स की बात भी नहीं मानी। तो बीटा सेल्स क्या करेंगे, वो अपने थर्ड ग्रुप को बोलेंगे कि अब आपको देखना है क्योंकि आप सिक्योरिटी वाले हो, आपको देखना है क्योंकि आप सिक्योरिटी वाले हो। तो वो क्या करेंगे, उनको एक बार प्यार से समझाएंगे कि आपको बाहर जाना है क्योंकि आपके पास में पास नहीं है। जब वो नहीं जाएंगे तो यहाँ शुरू होगा लड़ाई झगड़ा। और जब एक बार लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो लड़ाई शुरू होगी 2 लोगों में और आसपास इकट्ठी हो जाती है काफी सारी भीड़। तो वो भीड़ भी उनको फिर मारने पीटने लगती है। तो सेम हमारी बॉडी में भी यही हो रहा है। वायरल इन्फेक्शन आया, वायरल इन्फेक्शन आने के बाद में टी सेल्स और बी सेल्स एक्टिवेट हुए। ठीक है। अब उनकी वजह से जब टी सेल बी सेल एक्टिवेट हुए तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स रिलीज हुए। अब जब साइटोकाइनिन्स रिलीज हो रहे हैं तो उनकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई, यानी कि लड़ाई हो गई बॉडी के अंदर। अब जब बॉडी के अंदर लड़ाई हो गई तो और भी लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे, तो और ज्यादा एक्टिवेशन हुआ टी सेल्स का एंड बी सेल्स का। अब जब बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया तो आसपास जो चेयर्स थी
जो टेबल था या जो सीटिंग अरेंजमेंट किया गया था उसका डिस्ट्रक्शन तो होगा ही ना, क्योंकि जगह चाहिए लड़ने के लिए। जब जगह नहीं मिलेगी तो आसपास की जो चीजें उनको इधर उधर फेंका जाएगा। तो जब एक्स्ट्रा टी सेल और बी सेल का एक्टिवेशन हुआ तो उसने क्या किया, जो माइलिन शीट थी उसको डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लड़ने के लिए जगह चाहिए। अब जब माइलिन शीट डिस्ट्रक्ट होने लगेगी तो क्या होगा, बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। तो वही सेम हो गया ना, जब आपकी जहां आपने बैठना था, सीटिंग अरेंजमेंट किया गया था, वहां की सारी चेयर उठा के इधर उधर फेंक दी गई तो क्या होगा, आपका नुकसान हो गया, खुद बॉडी का ही नुकसान हो गया ना। आपने अपना फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, आपका ही नुकसान हो गया। उसी तरीके से ही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स कॉजेज डैमेज इन द माइलिन शीट विच इज नोन एज डीमाइलिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेंड्रोसाइट्स। इसकी वजह से होता है हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस, नॉट माइस्थीनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लीरोसिस। समझ आ गया इसका पैथोफिजियोलॉजी, या एक बार फिर से बताऊं? टेल मी, समझ आ गया? यस मैम। ओके ओके, तो मैं जस्ट एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ड्यू टू कॉजेज, कॉजेज क्या है, वायरल इन्फेक्शन। देयर इज इंक्रीज इन द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंड बीटा सेल्स which leads to production of inflammatory cytokinins, which leads to inflammation, and which leads to activation of more T cells and B cells, which leads to demyelination and destruction of the oligodendrocytes, which leads to multiple sclerosis, which leads to multiple sclerosis। तो ये हो गया आपका पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट आएगा आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। Okay, so the course of illness varies from person to person. There are 4 type of clinical patterns. One, एक आता है आपका relapsing और remitting myasthenia multiple sclerosis। तो इसमें क्या होता है, the most common initial pattern होता है episodes of acute worsening with recovery and a stable course between relapses। मतलब इसमें क्या होता है कि relapsing का मतलब आपको पता है कि एक particular टाइम पे हो रहा है, फिर थोड़ा सा उसका प्रोग्रेस कम हो जाएगा, फिर सडनली उसका प्रोग्रेस इंक्रीज हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद सडनली उसका प्रोसेस अपने आप ही स्लो हो जाएगा। तो ये होता है रिलैप्सिंग और रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, देयर इज एक्यूट एपिसोड ऑफ वर्सनिंग द कंडीशन एंड रिकवरी विद स्टेबल कोर्स बिटवीन द रिलैप्सेस। मतलब एक बार स्ट्रोक, एक बार अटैक हुआ मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, फिर उसकी थोड़ी सी रिकवरी हो जाएगी और वो कंडीशन स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद फिर से सडनली एक बार फिर से कंडीशन वर्स हो जाएगी और उसकी रिकवरी स्लो हो जाएगी। उसके बाद तो कुछ कुछ टाइम के बाद में, जैसे माइग्रेन होता है ना, नॉट माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक्स होते हैं ना। क्लस्टर हेडेक्स में क्या होता है कि एक बार हेडेक हुआ, फिर उसके बाद थोड़े अपने आप ही वो सबसाइड हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद हेडेक होने लगेगा, फिर सबसाइड हो जाएगा, फिर हेडेक होने लगेगा, फिर सबसाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका रिलैप्सिंग और रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। एक बार अटैक होगा स्क्लेरोसिस का, फिर वो स्लो डाउन हो जाएगा उसका प्रोग्रेशन, फिर 3-4 दिन के बाद में वो सडनली बढ़ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम, हेडेक होने लगेगा, बॉडी एक होने लगेगा, फिर वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप स्टॉप हो जाएगा, फिर दोबारा से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज रिलैप्सिंग और रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एपिसोड्स ऑफ एक्यूट वर्सनिंग विद रिकवरी एंड अ स्टेबल कोर्स बिटवीन रिलैप्सेस। देन आता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इट ग्रेजुअली and continuous neurologic disorientation from onset of manifestation। मतलब प्राइमरी प्रोग्रेसिव यानी कि ये धीरे 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 इंक्रीज करता है। जैसे रिलैप्सिंग हो रहा था ना कि एक बार अटैक हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से सिम्टम्स नजर आने लगेंगे, फिर 3-4 दिन के बाद में वो फिर से अपने आप ही सबसाइड हो जाएगा, फिर 4-5 दिन के बाद में सिम्टम्स आएंगे, पेन होगा, मसल पेन होगा, बॉडी पेन होगा और डिसोरिएंटेशन हो जाएगा, फिर 4-5 दिन के बाद में अपने आप सबसाइड हो जाएगा, फिर से उसके अटैक्स आएंगे। तो ये रिलैप्सिंग है, रुक रुक कर हो रहा है। बट प्राइमरी प्रोग्रेसिव में ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी प्रोग्रेसिव में होता है कि धीरे 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 कंडीशन वर्स होती चली जाती है। जैसे जीबी सिंड्रोम में हो रहा था ना, प्रोग्रेशन हो रहा था कि जो डिजीज कंडीशन है वो हेड से शुरू करेगी और धीरे 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 वो हर बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती चली जाती है। इसी तरीके से प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है कि ग्रेजुअली इट कंटिन्यूज एंड डिसओरिएंटेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम विल बी देयर, यानी कि धीरे 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 ये कंडीशन वर्स होती चली जाती है। थर्ड आता है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, ग्रेजुअल न्यूरोलॉजिक
डिटोरिएशन विद और विदाउट सुपर इम्पोज्ड एक्यूट रिलैप्सेस, यानी कि जो प्राइमरी में क्या है कि उस जो डिजीज कंडीशन है उसका प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो है, यानी कि एक दिन कुछ होगा, फिर अगले दिन कुछ और होगा, फिर थर्ड डे उसका कोई और दूसरे सिम्टम्स आने लगेंगे, फिर फोर्थ डे को कोई और दूसरे सिम्टम्स आने लगेंगे। तो जो कंडीशन है वो धीरे 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 टाइम टेकन है, मतलब टाइम के साथ वो प्रोग्रेस करेगी। बट सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में क्या होता है, रिलैप्सेस होते हैं। रिलैप्सेस आर देयर कि सपोज फर्स्ट डे पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का फर्स्ट अटैक हुआ, फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में वो अटैक रुक गया, और दो दो घंटे के बाद में उसको फिर से मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक हुआ, लेकिन इस बार कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो गई। फिर उसके बाद में कुछ देर के बाद फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक हुआ, लेकिन कंडीशन अभी प्रोग्रेस कर रही है, सीवियरली प्रोग्रेस कर रही है। जब पहला अटैक हुआ था तो सिर्फ हेडेक था, सेकेंड अटैक हुआ तो हेडेक था, ब्लड विजन था, थर्ड अटैक हुआ तो ब्लड विजन है, हेडेक है, बॉडी पेन है, डिसोरिएंटेशन है, फिर मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं। तो ये डिजीज कंडीशन प्रोग्रेस कर रही है विद रिलैप्सिंग, प्रोग्रेस कर रही है विद रिलैप्सिंग, तो दैट इज सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इट ग्रेजुअली deteriorates the functions of neurological system. It gradually deteriorates the functions of neurological system. अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये सिमिलर होता है हमारा आपका सेकेंडरी की जैसे, जैसे सेकेंडरी में हो रहा था ना कि धीरे धीरे टाइम के साथ में, नॉट धीरे धीरे बट सडनली टाइम के साथ में प्रोग्रेस कर जाता है। एंड प्रोग्रेसिव में क्या हो रहा है कि ये टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, कंडीशन वैसे वैसे खराब होती जा रही है, रेगुलरली कंडीशन खराब होगी बट वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। जैसे प्राइमरी में बहुत स्लो कंडीशन खराब हो रही थी, प्रोग्रेसिंग में बहुत जल्दी से कंडीशन वर्सन हो जाती है, तो ये डिफरेंस होता है। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स में क्या क्या होगा, आपका एटेक्सिया होगा, एटेक्सिया मीन्स मूवमेंट डिसऑर्डर्स, देन डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मोटर सिम्टम्स में क्या होगा, आपका वीकनेस होगा, पैरालिसिस होगा, आपकी बॉडी पैरालिसिस हो जाएगी, मतलब पेशेंट की बॉडी पैरालिसिस हो जाएगी, ट्रंक है, हेड मूवमेंट नहीं होगे, फिर एटेक्सिया हो जाएगा, यानी कि पेशेंट को जितने भी मोटर फंक्शंस हैं, ही कांट वॉक, ही कांट स्लीप, ही कांट टॉक टू एनीबॉडी, फिर पेशेंट को डिप्लोपिया होगा, डबल विजन हो जाएगा, स्कैनिंग स्पीच हो जाएगा, मतलब पेशेंट वोंट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली। देन जो मसल्स हैं, जितनी भी मसल्स होती हैं आपकी, जो फेशियल मसल्स होंगी उनमें स्ट्रेचिंग हो जाएगी, स्पास्टिसिटी हो जाएगी, पेशेंट वोंट बी एबल टू स्पीक, पेशेंट वोंट बी एबल टू स्वॉलो, और मसल मूवमेंट्स हैं वो मसल मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। देन सेंसरी में क्या क्या चीजें होंगी, सेंसरी तो हमारा जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो डिवाइडेड हो जाएंगे मोटर सिम्टम्स में एंड सेंसरी सिम्टम्स में। तो मोटर सिम्टम्स में क्या क्या होता है, एटैक्सिया हो जाएगा, यानी कि पेशेंट को मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, मसल कोऑर्डिनेशन डिक्रीज हो जाएगा, डिसआर्थरिया हो जाएगा, डिस्फेजिया हो जाएगा, वीकनेस होगा या पैरालिसिस हो जाएगा लिम्स का, देन डिप्लोपिया होगा, स्कैनिंग स्पीच होगा, स्कैनिंग स्पीच मतलब पेशेंट वोंट बी एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, वर्ड्स दे कांट अंडरस्टैंड द वर्ड्स। then spasticity of the muscles that are chronically affected like facial muscles हैं, आपके कार्डियक मसल्स हैं, या फिर आपके जॉइंट्स हैं, इनमें पेन होगा, स्पास्टिसिटी हो जाएगा, फिर रिजिडिटी हो जाएगा, पेशेंट वोंट बी एबल टू मूव द हैंड्स लिम्स, ये सारे कंडीशंस होंगे मोटर मोटर सिम्टम्स में। देन सेंसरी सिम्टम्स में क्या होगा, नमनेस होगा, टिंगलिंग होगा एंड पैरेस्थीसिया होगा। पैरेस्थीसिया मींस पैरालिसिस मींस एब्सेंस ऑफ muscle coordination, absence of muscle coordination, and paresthesia means weakness of muscle coordination. Then blindness हो जाएगा, blood vision होगा, vertigo होगा, tinnitus होगा, decreased hearing होगा, hearing capacity कम हो जाएगी, then chronic neuropathic pain होगा, patient को nervous system pain होगा, backbone में pain होगा, फिर spinal injury की वजह से pain होगा, lower back pain होगा, then उसके बाद में pain in the lower thoracic abdominal region, that is lower back pain। तो ये सारे सेंसरी सिम्टम्स होंगे। देन इमोशनल सिम्टम्स में क्या होगा, फटीक होगा पेशेंट को, डिप्रेशन होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है आपकी इडियोपैथिक है, कोई भी साइन जो भी इसके इटियोलॉजी है वो अननोन है, बस रिस्क फैक्टर्स हम मान के चल सकते हैं कि रिस्क फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, बट
इटियोलॉजी अननोन है, तो इटियोलॉजी के बेसिस पे अगर हम रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पे अगर हम पेशेंट को मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे तो दे कैन लीड टू साइड इफेक्ट्स। तो इमोशनल प्रॉब्लम्स में क्या होगा, फटीग होगा, डिप्रेशन, डिसओरिएंटेशन एंड मेडिसिनल साइड इफेक्ट्स। तो आपके तीन तरीके के सिम्टम्स हैं, मोटर सिम्टम्स हैं, फिर सेंसरी सिम्टम्स हैं एंड इमोशनल सिम्टम्स हैं। तो मोटर सिम्टम्स में क्या क्या है, एटेक्सिया, डिसार्थ्रिया, डिस्फेजिया, वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ द लिम्स, डिप्लोपिया, स्कैनिंग स्पीच, स्पास्टिसिटी ऑफ द मसल्स। देन सेंसरी में है नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, पैरेस्थीसिया, पैची ब्लाइंडनेस और ब्लाइंडनेस, ब्लर्ड विजन, वर्टिगो, टिनिटस, डिक्रीज्ड हियरिंग कैपेसिटी, chronic neuropathic pain and lower thoracic region pain और lower back pain. Then emotional problems में क्या क्या होगा, fatigue होगा पेशेंट को, डिप्रेशन होगा, डिसोरिएंटेशन होगा एंड मेडिसिनल साइड इफेक्ट्स होगा। ये होगा आपका क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद आते हैं हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस पे। अब उसके लिए क्या क्या हमने टेस्ट कराने हैं। तो एक्चुअली दिस कंडीशन इज इन रिसर्च सिचुएशन और रिसर्च हो रहा है अभी भी ये कंडीशंस के ऊपर, तो इसलिए देयर इज नो डेफिनेट टेस्ट फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एग्जैक्ट टेस्ट कौन सा करना है, दिस इज अननोन। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज कलेक्ट द डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। तो डिटेल हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री होगा पेशेंट का, फिर कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। हिस्ट्री कलेक्शन में आपने पूरा टोटल कंप्लीट, जो मैं आपको ऑलरेडी बताती रहती हूँ हमेशा कि आपने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेना है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करना है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री कलेक्ट करना है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री कलेक्ट करना है, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी तो लास्ट पेशेंट को नहीं हुई है, किसी भी तरीके की मेडिसिनल इंजरी तो नहीं है, या किसी भी तरीके की मेडिसिनल एलर्जीज तो नहीं है, फूड एलर्जीज तो नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स की कोई मेडिकल फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये सारा हमारा हिस्ट्री कलेक्शन में आएगा। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में क्यों आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि पेशेंट को मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, फिर पेशेंट को स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, एटैक्सिया हो रहा है, पेशेंट को मसल कोऑर्डिनेशन लूज हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, फिर हेडेक हो रहा है, सीवियर कंफ्यूजन है, डिसओरिएंटेशन है, मेंटल डिसेबिलिटीज है पेशेंट को, तो ये सारा हम हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे। देन उसके बाद थोड़े से टेस्ट जो कर सकते हैं बट नॉट डेफिनेट, तो वो करेंगे हम CSF इवैल्यूएशन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इवैल्यूएशन, टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। क्यों, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हुआ है तो डेफिनेटली देयर विल बी एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस। तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो इसीलिए वी हैव टू चेक फॉर द amount of antibodies which are present in the CSF or cerebrospinal fluid. So we have to perform CSF evaluation. Then nerve conduction we have to do, muscle coordination weak हो रहा है, muscle movements weak हो रहे हैं, फिर muscle reflexes weak हो रहे हैं, तो इसीलिए we have to perform muscle coordination. MRI करना है, CT scan करना है। ओके, सो नेक्स्ट आएगा आपका मेडिकल मैनेजमेंट। नाउ व्हेन यू नो कि देयर इज नो इटियोलॉजी, तो कैसे मेडिकल मैनेजमेंट करोगे आप जब मालूम ही नहीं है कि कॉजेज क्या है। सपोज आपको ये मालूम है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, तो आप इन्फेक्शियस डिजीज के लिए बैक्टीरियल है या फिर वायरल है, उसी तरीके से आप एंटी माइक्रोबियल्स दोगे पेशेंट को, एंटीबायोटिक्स दोगे। बट व्हेन यू नो देयर इज नो कॉज फॉर द डिजीज कंडीशन, व्हाट इज द सिम्टोमेटिक मैन, what is the exact management you will do? You will do only the symptomatic management. So there is no exact cure for the multiple sclerosis. The aim is to prevent or postpone the long term disability. So mainly there is no exact cure for multiple sclerosis, but to prevent or postpone the long term disabilities. Long term disabilities क्या हो सकते हैं, complete blindness हो सकता है, complete paralysis हो सकता है, कोमा हो सकता है पेशेंट को complete फंक्शनल डिसेबिलिटी हो सकता है। तो इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए या फिर इस प्रोसेस को पोस्टपोन करने के लिए कि जो चीजें आज होने वाली हैं उसको थोड़ा सा प्रोग्रेस कर दिया जाए या उसको 4 साल के लिए डिले कर दिया जाए, इसके लिए वी आर डूइंग द मैनेजमेंट। तो इसके लिए हम क्या क्या देते हैं, इसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी दैट इज नोन एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, या फिर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे हम, फिर हम देंगे इंटरफेरॉन बीटा 1। इंटरफेरॉन बीटा 1 हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पेशेंट को बी सेल स्टिमुलेशन हो रहा है, इसलिए हम इंटरफेरॉन्स देंगे। इंटरफेरॉन्स बीटा 1 देंगे,
उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम ब्लैडर डिस्फंक्शन के लिए पेशेंट को डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे, एंड फॉर कॉन्स्टिपेशन के लिए वी हैव टू प्रोवाइड सपोजिटरीज, फैटीग के लिए वी हैव टू प्रोवाइड मसल रिलैक्सेंट्स, एंड स्पास्टिसिटी के लिए वी हैव टू प्रोवाइड डायजेपम और muscle relaxants we have to provide. Then we have to perform nutritional therapy, multivitamin therapy we have to give, then physical and speech therapies we have to provide. ये सब आपका nursing management में आएगा. तो physical therapies we have to provide to the patient, speech therapies क्योंकि patient won't be able to speak properly, उनको dysarthria हो रहा है, patient को dysarthria हो रहा है, फिर patient को ataxia भी हो रहा है, तो muscle coordination weak हो रहा है, जिसकी वजह से patient is not able to speak properly, listen to properly, hearing loss है, तो इसीलिए physical exercises कराएंगे, physical therapies देनी है, फिर speech therapy करानी है, exercises करानी है. Then sometimes surgical management में क्या करते हैं, deep brain stimulation. Deep brain stimulation में क्या करते हैं, if other options have failed, then a device is implanted that stimulates an area of the brain in case of there is severe tremors in the limbs. यानी कि अगर ब्रेन का कोई भी जो सिस्टम है या ब्रेन का कोई पार्ट है उसके अंदर डिप्रेशन हो गया है या वो किसी भी तरीके का उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी है, तो अगर अगर आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट काम नहीं करता है तो वी हैव टू इम्प्लांट अ डिवाइस. जैसे जब कार्डियक सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो हम पेस मेकर्स इम्प्लांट करते हैं ना नर्व इम्पल्सेस के लिए, उसी तरीके से नर्व इम्पल्सेस के लिए वी हैव टू इम्प्लांट a device in the brain also to produce the nerve impulses. This is known as deep brain stimulation. समझ आ गया? जिस तरीके से हम लोग हार्ट के अंदर पेस मेकर्स इम्प्लांट करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इम्पल्सेस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, उसी तरीके से वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ डिवाइस इन द ब्रेन सो the part of the brain which is being affected has to perform the normal function. इससे क्या होता है कि नर्वस जो नर्व कंडक्शन है या नर्व इम्पल्स फॉर्मेशन है वो नॉर्मलाइज हो जाता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड the body reacts towards the normalization or functions as normal. So that is known as your deep brain stimulation. नेक्स्ट आएगा आपका नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग मैनेजमेंट आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पेशेंट का वेंटिलेशन प्रॉपर रखना है, फिर कार्डियक मॉनिटरिंग करते रहना है क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे कार्डियक सिस्टम को भी मेंटेन करता है, उसके पंपिंग एक्शन को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए यू हैव टू परफॉर्म द कार्डियक फंक्शन ऑल्सो. कार्डियक चेकअप करना है, फिर रेस्पिरेटरी फंक्शंस को नॉर्मल रखना है, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए तो यू हैव टू प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन, फिर पेशेंट का इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग करना है, पेशेंट को एडिमा तो नहीं हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन तो नहीं हो रहा है बॉडी में, या एक्सेसिव पेशेंट को यूरिनरी इनसफिशिएंसी तो नहीं हो रहा है, इनकॉन्टिनेंस तो नहीं हो रहा है, ये सब यू हैव टू चेक फॉर द इनकॉन्टिनेंस, या फिर ब्लैडर रिटेंशन यू हैव टू चेक, इनपुट एंड आउटपुट चेक करना है, वाइटल साइंस चेक करने हैं, फिजियोथेरेपी पेशेंट को कराना है, एक्सरसाइजेस पेशेंट को कराना है, फिर स्पीच थेरेपी कराना है, उसके बाद में सोशलाइजेशन पेशेंट को कराना है, सोशलाइजेशन के लिए ग्रुप थेरेपीज कराना है. तो दिस कम्स अंडर योर नर्सिंग मैनेजमेंट. So this ends your topic. We have discussed today about multiple sclerosis. The definition we have discussed, incidences we have discussed, risk factors and etiology we have discussed, then pathophysiology, clinical sign and symptoms we have discussed, type of multiple sclerosis we have discussed, then diagnostic evaluation and management we have discussed. So these we have discussed in multiple sclerosis. This ends your topic for today. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल डील विद मायस्थीनिया ग्रेविस. नेक्स्ट क्लास में हम मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ेंगे, तो पढ़ के आना, ठीक है? ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम. notes I will send today itself, don't worry, I will send right now, I will send, ठीक है? थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू.